Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel Learn with Deepti, where we are discussing class 9 maths NCERT. So in our last video we discussed exercise 1.1 and we have discussed what are rational numbers, what are whole numbers, natural numbers, how to find rational numbers between any two numbers. So today we will start with irrational numbers. Irrational numbers. Now what are irrational numbers? As you know, rational numbers are those. Rational numbers वो होते हैं जिनको आप p by q की फॉर्म में, हमने ये लास्ट टू वीडियोस में किया है कि जिनको आप p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where q is not equal to 0 and p and q they both are integers. Now what are irrational numbers? Irrational numbers are those which cannot be represented in the form of p by q where q is not equal to 0. So they are opposite of rational numbers. Rational numbers can be represented in the form of p by q and irrational numbers are those which cannot be represented in the form of p by q. Like the number root 2, root 3, root 5. Such numbers they cannot be represented in the form of, because आप इसको रूट टू बाय वन भी लिखते हो, रूट टू की जो वैल्यू होती है वो कुछ 1.414 and so on. So this is not an integer. So this root 2 is not a rational number, it is an irrational number. And when we combine both rational and real numbers, they come under one head which is known as real numbers. So real numbers are those which consist of both rational plus irrational numbers. So when you represent it on a number line, what you get is the real numbers, which consist of whole numbers, natural numbers, rational numbers, irrational numbers, everything. So they come under real numbers. So both, when you combine both rational plus irrational, you get real numbers. So now next we'll do that, how do we represent an irrational number on a number line. नंबर लाइन पे आप इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब चलिए, जैसे हमें रूट टू अब चाहिए, रूट टू को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद आप देखिए अब इसमें क्या है। अब आप रूट टू के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी सब लोगों ने पहले। Pythagoras theorem is for a right angle triangle where this is your hypotenuse, this is your base and this is your perpendicular. So according to the Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equal to p square, perpendicular square plus base का square. So you get h, your hypotenuse, as under the root of p square plus b square. So what is this? This is your Pythagoras theorem. दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम. अब हम इसको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे रूट टू के लिए? अब रूट टू के लिए आप रूट टू को कैसे लिख सकते हैं? अंडर द रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये आपका रूट टू ही आएगा. तो अब यहाँ पे आपका p जो है आपका वन है और b भी है वो आपका वन है, तो ये आपका वन हो गया और ये भी आपका वन हो गया. तो अगर आप एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे कि बेस भी वन है और जहां पे आपकी परपेंडिकुलर भी वन है, तो वहां पे जो हाइपोटेन्यूज आएगी उसकी जो लेंथ होगी वो रूट टू के इक्वल होगी. अब आप इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप एक डी ले लेते हैं और डी से आपको 90 डिग्री का एक एंगल, मान लीजिए आपने ये वन पे रखा, क्योंकि आपका जो बेस है ये वन है, तो मैं जीरो से लेके वन तक इसको बेस मान रही हूँ और इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं. ये कोई पॉइंट आपका ऐसे आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे ये आपका जो लाइन आ गई, से आप इसको पॉइंट ए मान लीजिए, ठीक है. ये आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया और अगर आप स्केल से देखेंगे
आप स्केल से अगर इसको वन के करीब आप अपने स्केल से देख लीजिएगा कि वन आपका कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पर आता है आपका वन, इसको मैंने पॉइंट दे दिया बी, ठीक है। अब ये पॉइंट जो आपने ये बी निकाला है, ये भी इसकी लेंथ कितनी है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और अब आपने इसको ज्वाइन कर दिया, स्केल से ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो आपकी ओ बी लेंथ आई, ये ओ बी आपका आया हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आपका √2 के इक्वल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप √2 को अब इस नंबर लाइन पे, ये आ गई आपके पास लेंथ ओ बी जो है, दिस इज इक्वल टू √2। आपको कंपास लेना है, आपने ओ पे रखा और कंपास को आपने बी तक ओपन किया, तो ये जो आपका लेंथ आया, मान लीजिए ये यहाँ पे कुछ आ रहा है, आप अपने आप भी कंस्ट्रक्ट करके देखिए, यहाँ पे कुछ आपका पॉइंट आएगा विच इज √2। तो दिस पॉइंट, इसको आप सी कह दीजिए, दिस इज √2। So this is how you represent √2 on the number line. अब नेक्स्ट आप देखिए, इसी तरीके से आप √3 भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा, लेकिन अब √3 को आप कैसे लिखेंगे, √3 के लिए आप लिखते हैं अंडर द रूट ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपके पास √2 आया हुआ है यहाँ पे ओ बी, ठीक है। आपने अब यहाँ पे एक राइट एंगल बनाना है, ये आपका मान लीजिए इधर की तरफ कुछ राइट एंगल बना, आपको लेंथ आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए 1 के इक्वल, आप अपने स्केल से मेजर करिएगा 1। अब जो इसके बाद मान लीजिए यहाँ तक आपका 1 आया है, ठीक है, ये आपका √2 था जो आपने अभी कंस्ट्रक्ट किया है, आप इसको ज्वाइन करेंगे, से दिस पॉइंट एज डी। अब ये जो ओ डी है ये √3 के इक्वल है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल था। अब ये वाला जो √2 है ये आपका बेस बन गया, 1 आपका परपेंडिकुलर हो गया, अब जो अंडर √3 आया अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका √3 के इक्वल आ गया। अगेन आपने वही करना है जो आपने √2 के लिए किया था, √2 के लिए जैसे किया था, आपको ओ पे अपना रखना है और डी तक इसको लेके जाएंगे आप, और उसके बाद जो पॉइंट आपका कट होगा वो आपका √3 होगा, कुछ यहाँ पे आएगा, ये आपका जो पॉइंट आएगा ये आपका √3 के इक्वल होगा। So this is how you represent √3 on the number line. इसी तरीके से आप नेक्स्ट कर सकते हैं, √5 भी निकाल सकते हैं। तो √5 के लिए आप क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी निकाल लेंगे, ये भी 3 + 2 आपका ये √5 आएगा। इस तरह से आप फर्दर √5 √7 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका एक्चुअली √5, हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन भी है। तो इस तरीके से पहले आपको √3, आपने √2 निकाल लिया, √3 निकाल लिया, देन आप √5 इसी तरीके से निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ यू विल डू दैट। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट अब हम इसमें बात कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज की। तो एक क्वेश्चन तो आपका √5 वाला आ गया है, आपने √3 तक निकाल लिया, उसके बाद सिमिलर प्रोसीजर पे आप उसको √5 में भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एनसीईआरटी का ट्रू और फॉल्स में है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इज इट ट्रू। आपको अभी बताया था मैंने कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल प्लस इरेशनल। जब रैशनल और इरेशनल दोनों के कलेक्शन को आप एक साथ जोड़ के बोलते हैं तो आपके पास रियल नंबर आता है। तो एवरी इरेशनल नंबर कम्स अंडर रियल नंबर, बिकॉज रियल नंबर में दोनों आ जाते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। So the first statement, question number 1 की first statement is true that every irrational number is a real number. Next आपका second बोल रहे हैं कि every point on the number line
every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. Where m is a natural number. अब आप देखिए कि हर पॉइंट को आप ऐसे वो कह रहे हैं कि आप हर पॉइंट को रूट m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास एक नंबर आता है -1 भी होता है, -2 भी होता है. अगर आप इनका रूट लिखें तो ये जो आते हैं ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाते हैं. दे आर नॉट द रियल नंबर्स. ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाते हैं. आयोटा की फॉर्म आ जाती है इसमें. इसको आप आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये वाले जो नंबर्स हैं, these numbers cannot be represented on the form of root m because these are not the real numbers. These are complex numbers. These are complex numbers. ठीक है. तो एक तो ये चीज हो गई. दूसरी, आपका नंबर एक आता है √2, विच इज डेफिनेटली एन इरेशनल नंबर. अगर आप इसका करते हैं 1. इसकी वैल्यू 1.414 है. अब ये जो 1.414 है ये नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है. नेचुरल नंबर्स आपके होल पूरे नंबर्स होते हैं. स्टार्ट फ्रॉम 1 है, नंबर 2 है, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं. लेकिन अब यहाँ पे आपके डेसिमल में जब आ गया 1.414 आकर के आ गया, तो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स कि हर पॉइंट को एक बार रूट m में नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर रूट ऑफ -1 है, रूट ऑफ -2 है, तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर. दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन. और दूसरी बात हो गई कि जब आप अगर √2 भी लेते हैं, माइनस भी मत लीजिए, आपने √2 लिया, इसका 1.414 है, तो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है. अब थर्ड में वो बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. अब आप √4 करिए. √4 क्या आता है आपका? 2 आता है. ठीक है. अब 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर. ठीक है. तो एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है, ये जरूरी नहीं है. ये रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं. ठीक है. तो दे स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है. ठीक है. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. Question number 2 says, are the square roots of all positive integers irrational? Are the square roots of all positive integers are irrational? स्क्वायर रूट अभी जैसे हमने इसका थर्ड पार्ट के लिए किया कि आपने √4 को किया. अब √4 जो है वो 2 के इक्वल है, विच इज अ रैशनल नंबर. सो इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है कि द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल. दे आर रैशनल आल्सो. इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरेशनल. नेक्स्ट, शो हाउ √5. ये मैंने आपको अभी करवाया ही था. √2 से आपने √3 निकाला, √3 से आप फर्दर उसको कंस्ट्रक्ट करिए राइट एंगल ट्राइंगल और आपका √5 आ जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट अवर एक्सरसाइज नंबर 1.2. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे रियल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन की. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.